ایک باپ نے اپنی بیٹی کو مٹی کے گھڑے میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا۔ وہ گھڑا ہچکولے کھاتا ہوا دریا کی موجوں میں بہتا رہا اور بہتے بہتے ایک بیری کی ٹہنی سے اٹکا اور ایک جگہ رک گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک بندریہ فرشتہ بن کر آئی۔ جب اس نے بچی کے رونے کی چلکاریاں سنی تو اپنے پنجوں سے گھڑے کا ڈھکن کھولا اور پھر بچی کے ساتھ اس بندریہ نے جو کیا اسے سن کر آپ سبحان اللہ پکار اٹھیں گے۔ کسی گاؤں میں ایک تاجر اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ زمین جائیداد اور پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ وہ بیٹی کی پیدائش پر اپنی بے عزتی سمجھتا تھا۔ اسے بس ایک ہی فکر کھائے جا رہی تھی، اگر میرا بیٹا نہ ہوا تو میری جائیداد کا وارث کون بنے گا؟ کمرے میں بیوی درد ذہ کی تکلیف سے تڑپ رہی تھی اور سوداگر بار بار گرجتے ہوئے بول رہا تھا، اے منحوس ماری عورت، کم سے کم آج میری گاؤں والوں کے سامنے عزت رکھ لینا، بیٹی مت پیدا کر دینا، نہیں تو تجھے اور تیری بیٹی کو ایسی رسوائی اور ذلت سے نوازوں گا کہ تو ساری عمر یاد رکھے گی۔ بیوی ایک تو درد سے کانپ رہی تھی، ایک شوہر کی باتیں اسے اندر تک جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ پسینے میں شرابور تھی۔ اتنے میں سوداگر سے دایا بولی، بیٹا آپ باہر جاؤ، بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ سوداگر کمرے سے باہر آ گیا اور گھر کے صحن میں ٹہلنے لگا اور سوچنے لگا کہ اس بار اگر وہ تعویذ کام نہ کیا جو میں نے بیوی کے گلے میں ڈالا تھا، اگر پھر بھی بیٹی ہی پیدا ہو گئی تو آج وہ بزرگ بھی دنیا میں نہیں بچے گا۔ لیکن ہوا وہی جو اللہ کو منظور تھا۔ اس کی بیوی نے پھر تیسری بیٹی کو جنم دیا۔ سوداگر کو جب یہ خبر ملی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں غصہ بھر آیا اور وہ بولا، یہ بدنصیبی میرے گھر میں اب نہیں رہے گی۔ جب تک تو بیٹیوں کو جنم دیتی رہے گی میں انہیں دفناتا رہوں گا۔ وہ گھر سے غصے سے نکل گیا اور اسی بزرگ کے پاس پہنچا جس نے اسے تعویذ دیا تھا کہ اس بار بیٹا ہی ہوگا۔ بزرگ نشے میں دھند اپنی موج مستی میں اپنی کٹھیا میں بیٹھا تھا۔ اتنے میں تاجر نے غصے سے دہاڑ کر کہا، بابا جی تم نے کہا تھا اس بار بیٹا پیدا ہوگا، لیکن میرے گھر میں منحوس ماری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وہ بزرگ کوئی بزرگ نہیں تھا بلکہ جادوگر تھا جو دولت کے لالچ میں شیطان کی عبادت کرتا تھا۔ جب تاجر نے اس پر غصہ نکالا تو وہ ہنسا اور بولا، بیٹی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا تعویذ تیری بیوی نے گلے میں پہنا ہو اور بیٹی پیدا کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ضرور تو خود ہی کسی ایسے سائے میں مبتلا ہے جو تجھے بیٹے کا باپ بننے ہی نہیں دیتا۔ اب بیٹا چاہیے تو کچھ انگلی ٹیڑھی کرنا پڑے گی، ورنہ تو کبھی بھی بیٹے کا منہ نہیں دیکھ پائے گا۔ تجھے اپنی چھوٹی بیٹی کی قربانی دینا پڑے گی۔ تاجر بولا، بابا میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ مجھے بتاؤ کیا کرنا ہوگا۔ مجھے ہر حال میں بیٹا چاہیے، بیٹی نہیں۔ بزرگ بولا، تو ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، جو تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اسے آج ہی مٹی کے گھڑے میں بند کرو اور دریا میں بہا دو، تاکہ تیرے گھر میں جتنی بھی نحوست ہے وہ اپنے ساتھ ہی بہا کر لے جائے، اور پھر اس کے بعد دیکھنا تیرے گھر میں بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ یہ تیری بیٹی ہی منحوس ہے۔ تاجر بولا، اتنا سا کام تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں 2 بیٹیاں تو پہلے ہی مار چکا ہوں، میں آج ہی بیٹی کو گھڑے میں بند کر کے دریا میں بہا دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ فوراً وہاں سے چلا اور گھر آ گیا اور بیوی کو بولا، اب ہمارے برے دن چلے گئے، ہمیں بیٹا ضرور ملے گا۔ اتنی بات سنتے ہی ماں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور سوچنے لگی، ضرور یہ بندہ میری بچی کے ساتھ کوئی گنونا کھیل کھیلنے والا ہے۔ تاجر کہنے لگا، آج کی رات تمہیں بھاری ضرور لگے گی، لیکن دیکھنا اس کے بعد بیٹے کی چلکاریاں کیسے گونجتی ہیں۔ بس تمہیں کرنا یہ ہوگا کہ بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کچے مٹی کے گھڑے میں ڈال دو تاکہ میں اسے دریا میں بہاؤں۔ اگر تم یہ کام خوشی سے کرو گی تو مجھے اچھا لگے گا، اگر نہیں مانو گی تو پھر بھی یہ بچی آج دریا میں ضرور بہے گی۔ تاجر کی بیوی زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کا خوف کرو، یہ اللہ کی دین ہے،
बेटा और बेटी सिर्फ अल्लाह की जात दे सकती है, ये तुम्हारे डोंगी बाबा नहीं। ताजिर गुस्से से बोला, बकबक मत कर, जो कहा गया वो कर। फिर उसने नन्ही बच्ची को माँ के हाथों से छीन लिया और माँ बेचारी तड़पते बिलखते अपनी बच्ची को बचाने की नाकाम कोशिश करती रही। लेकिन ताजिर ने बीवी को धक्का दिया और जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने बच्ची को मिट्टी के घड़े में बंद किया और लेकर दरिया की तरफ चल पड़ा और माँ को अंदर कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया ताकि ये शोर ना मचा सके, और बच्ची को घड़े में डाले दरिया की तरफ चलता रहा कि किनारे जाकर इधर उधर देखने लगा, कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन वो ये भूल गया था, कोई देखे न देखे, अल्लाह की जात हर जगह मौजूद है। फिर उसने बच्ची को दरिया में बहा दिया और खुद वहां से पलट गया। मासूम बच्ची की सिसकियां सुनकर उस वक्त जमीन हिल गई, आसमान कांपने लगा, फरिश्ते रोने लगे। ये जुल्म नहीं, जुल्म की इंतहा है। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वो कच्चा मिट्टी का घड़ा हचकोले खाता हुआ पानी की मौजों में बहता ही जा रहा था। फिर अल्लाह की कुदरत ये हुई, दरिया के पास ही एक झुका हुआ दरख्त था जो कि एक बेरी का दरख्त था। घड़ा हचकोले खाते हुए उस दरख्त की टहनी से अटक गया। वहीं जंगल में एक बंदरिया रहती थी। हाल ही में उसके बच्चे कोई शिकारी उससे छीन कर ले गया था। वो भागती हुई वहां अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। जब वो थक गई तो उसी दरख्त के पास आकर बैठ गई। अचानक उसके कानों में बच्ची के रोने की आवाज आई। वो बंदरिया चौंकी कि ये तो इंसानी बच्ची की आवाज लगती है। माँ की ममता थी, तड़प उठी। उसने जल्दी से देखा कि आवाज किधर से आ रही है। गौर किया तो घड़े के अंदर से बच्ची के रोने की आवाज थी। बंदरिया कुछ देर तक साकत रही। वो घड़े को हाथों में लेकर इधर उधर घुमाती रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर उसने घड़े का ढक्कन तोड़ डाला। जल्दी से उसने बच्ची को घड़े से निकाला। बच्ची के होंठ नीले पड़ चुके थे। बच्ची बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसके घुंघराले बाल, मोटी मोटी आंखें और चेहरा ऐसे जैसे वो शहजादी हो। बंदरिया ने बच्ची को फौरन सीने से लगाया और दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा करने लगी कि ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, अगर मेरे बच्चे छीने गए तो इसमें भी कोई बेहतरी ही थी। तूने मुझे बेहतर से बेहतरीन अता फरमाया। अब मैं इस बच्ची को पालूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। फिर वो बच्ची को उठाए एक दरख्त के नीचे बैठ गई। कभी बच्ची को फूलों का रस निकाल कर देती तो कभी फलों का रस निकाल कर देती ताकि बच्ची चुप हो जाए। बच्ची को जब बंदरिया की गोद में माँ की ममता लगी तो वो बच्ची सुकून से सो गई। बंदरिया प्यार से बच्ची के सर पर हाथ फेरती रही और फिर उसने टहनी के साथ ही एक कपड़े से झूला बांधा और उसमें बच्ची को लिटाकर खुद पास ही झूले देती रही। रात का वक्त था। जंगल की खामोशी में दरिया की लहरें हल्की हल्की सरसरा रही थी। बंदरिया बच्ची को झूले में लिटाकर उसके चेहरे को तकती रही जैसे अपने जिगर के टुकड़े को देख रही हो। अचानक उसने देखा कि बच्ची के जिस्म पर कपड़े तो थे ही नहीं, वो नंगी थी। बदन सर्द और लरज रहा था। बंदरिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोती हुई दरख्त के नीचे गई और अपनी झोली से पत्ते, घास और चंद फूल तोड़कर लाई, मगर समझ नहीं आ रहा था कि बच्ची को ढांपे कैसे। उसने दुआ के अंदाज में आसमान की तरफ देखा। ऐ रब, मैं तो जानवर हूँ मगर तेरी ये अमानत इंसान है, इसके जिस्म पर लिबास कैसे दूं? उसकी जुबान से निकली फरियाद आसमान तक गई। अचानक हवा रुकी, दरिया की लहरें थम गईं और करीब खड़े बेरी के दरख्त से एक नूरानी चमक उठी। बंदरिया चौंकी। उस दरख्त के तने के नीचे से एक नरम सा कपड़ा जैसे किसी ने खुद लाकर रखा हो, बारीक सफेद रेशों वाला, जैसे चांद की किरणों से बुना गया हो। बंदरिया हैरत से कपड़ा उठाने लगी तो उस कपड़े से इस कदर खुशबू आती थी जैसे जन्नत की हो। उसने बच्ची को नरमी से उठाया। वो कपड़ा लपेटा तो बच्ची के होंठों का निलाहट खत्म हो गया। बदन गर्म होने लगा और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बंदरिया का दिल कांप गया। ऐ रब,
یہ تو کرامت ہے، یہ تو تیرا خاص فضل ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ بچی کی چھوٹی سی ہتھیلی پر ایک نشان ابھرا ہوا تھا، چاند کے ہلال جیسا، جو دھیرے دھیرے چمکنے لگا۔ بندریا نے سر جھکا کر اس نشان کو چوما۔ تجھے اللہ نے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے اے نوری، تو کوئی عام بچی نہیں ہے۔ اس نے پہلی بار بچی کو نوری کہا۔ رات بھر بندریا اس بچی کو جھولے میں لٹائے رکھتی۔ جب وہ بچی اٹھ جاتی تو بندریا اپنی نرم دم سے اس کا جھولا ہلاتی اور اللہ کا نام دہراتی، اللہ میری بیٹی سو جا۔ اسی درخت کے پاس ایک کچی مٹی کی کٹیا بھی تھی۔ وہ اس کٹیا کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے جو کہ 40 دن کی عبادت سے فارغ ہو چکے تھے۔ ان کے کان میں ایک بچی کے رونے کی جب آواز آئی تو وہ فوراً کٹیا سے باہر نکلے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ یہ انسانی بچی اس جنگل میں کہاں سے آ گئی۔ جب ان کی نگاہ ایک بندریا پر پڑی کہ وہ ایک بچی کو جھولے دے رہی ہے تو اللہ والے بزرگ فوراً بندریا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، تیرے بچے کوئی شکاری اٹھا کر لے گیا۔ میں 40 دن کی عبادت میں مصروف تھا اور تجھ سے اتنا صبر نہ ہوا کہ میری عبادت کا انتظار کر لے، اور تو کسی کا انسانی بچہ ہی اٹھا کر لے آئی۔ کیا تیری ماں کی ممتا نہیں تڑپی؟ تو نے کسی ماں کی گود اجاڑ دی۔ بندریا بیچاری اپنی صفائی میں ہاتھوں کو ہلا رہی تھی اور رو رہی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ پھر وہ جلدی سے بھاگی اور جو ٹوٹا ہوا مٹی کا گھڑا تھا وہ اٹھا کر لے آئی اور اشارے سے بتانے لگی کہ اس کے اندر بچی تھی اور یہ پانی میں بہہ رہی تھی، میں نے وہاں سے نکالی ہے۔ تو اللہ والے بزرگ یہ بات سن کر حیران پریشان ہو گئے کہ آج کل کے انسان اتنے پتھر دل ہو گئے، اور ایسی حرکت تو جاہلیت کے دور میں ہوتی تھی، مگر ایسا کون پیدا ہو گیا جو آج بھی اتنا جاہل ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہو کر یہ گٹیا حرکت کی۔ بزرگ نے پیار سے جھولے سے بچی کو نکالا اور اپنے سینے سے لگایا اور بندریا کو بولے، چل تو بھی میرے پیچھے پیچھے آ جا، اب سے ہم دونوں مل کر اس معصوم سی گڑیا کو پالیں گے۔ کٹیا کے اندر آ کر بزرگ نے معصوم بچی کے لیے دودھ گرم کیا اور اسے گرم کپڑے میں لپیٹا تاکہ کچھ ہیٹ ملے اور اس کی طبیعت کچھ بہتر ہو۔ بندریا یہ سب پلکیں جھپکتے دیکھتی رہی۔ اللہ والے بزرگ نے بڑے پیار سے بچی کا نام نوری رکھا تو بندریا یہ نام سن کر جھوم اٹھی، کیونکہ دل ہی دل میں وہ پہلے ہی اس کا نام نوری رکھ چکی تھی۔ پھر وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ بندریا بچی کے لیے گھنٹوں دور دور جنگلوں میں گھومتی اور سب سے میٹھے اور رسیلے پھل لے کر آتی، اور بزرگ جیسے جیسے اپنی عبادت کرتے تو اس کا اثر نوری پر ضرور پڑتا۔ نوری اب 9 مہینے کی ہو چکی تھی۔ بندریا اس کو بازو سے پکڑ کر چلنا سکھاتی، جیسے ایک ماں اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی ہو۔ اللہ والے بزرگ اسے اللہ کی تسبیح یاد کرواتے۔ نوری بھی اب دن بدن بڑی ہوتی جا رہی تھی اور سب علم سیکھ رہی تھی، جیسے کہ نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت۔ اللہ والے بزرگ نے اسے ہر اچھے برے کی پہچان سکھائی۔ اب نوری 14 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بزرگ بابا کے لیے مزیدار کھانا بناتی۔ بندریا اسے باہر سے لکڑیاں چن کر لا کر دیتی، پانی بھر کر لاتی، اور بزرگ عبادت میں مصروف رہتے۔ زندگی ایسے ہی چل رہی تھی۔ لیکن دوسری طرف کیا نوری کو دریا میں پھینکنے سے سوداگر کو بیٹے کی خوشی نصیب ہوئی؟ آئیے وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ ادھر جب سوداگر اپنی بیٹی کو پھینک کر اپنے گھر واپس آیا تو اس کی بیوی کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ ہر وقت دعائیں کرتی کہ اے اللہ، پتہ نہیں میرا دل کیوں کہتا ہے کہ میری بیٹی کو کوئی اچھی جگہ تحفظ ملے گا، میری بیٹی جان سے نہیں جائے گی، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ میں پہلے ہی 2 بیٹیاں کھو چکی ہوں۔ جیسے تیسے کرتے سال بیت گیا۔ سال کے بعد سوداگر کے گھر سچ میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ سوداگر کے خوشی سے زمین پر پاؤں نہیں ٹکتے تھے۔ اس نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی اور فخر سے اپنے بیٹے کو اٹھا کر چومتا اور کہتا، دیکھو اگر میں اپنے گھر کی نحوست دریا میں نہ پھینکتا
तो आज बेटे का मुंह ना देख पाता। लेकिन उसे क्या खबर थी कि ये जो बेटा वो पाल रहा है ये बेटा नहीं, असल में ये एक नाग पाल रहा है जो बड़ा होकर अपने ही बाप को डसने वाला था। उसने जादूगर बाबा को बहुत सारा इनाम देकर नवाजा कि ये शायद उसी की बरकत से उन्हें बेटा मिला है। वो अगर मुझे मशवरा ना देते बेटी को दरिया में फेंकने का तो उसे बेटा नसीब ना होता। लेकिन वो जाहल आदमी ये नहीं सोच रहा था कि अल्लाह के सिवा कोई भी इंसान एक मक्खी का पर तक नहीं बना सकता। और उस झूठे जादूगर ने तो सिर्फ जायदाद की लालच में ये सब किया था। इधर नूरी पलकर जवान होती गई, उधर नूरी का भाई पलकर जवान होता गया, लेकिन बदतमीज और बदजुबान इतना कि कभी किसी का लिहाज ना करता। सुदागर उसकी हर गलती नजरअंदाज कर देता, उसकी हर नाजायज ख्वाहिश को पूरी करता। वो बड़े बुजुर्गों का लिहाज नहीं करता था। एक दिन सुदागर के घर में वो नुकरानी जो बरसों से उसके यहाँ काम कर रही थी, सीधी सादी और गरीब घर की औरत थी। सुबह मामूल के मुताबिक बर्तन धो रही थी कि सुदागर का बेटा वहाँ आ गया। उसकी आंखों में वहशत और तकब्बुर था। वो लड़की को छेड़ने लगा, पहले बातों से फिर हाथ बढ़ाने लगा। नुकरानी ने खौफ के मारे चीख मारी और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। वो सुदागर के पास जा पहुंची और रोते हुए बोली, मालिक, आपके बेटे ने मुझसे बदतमीजी की है। मेरा कसूर क्या था? मैं तो बस काम कर रही थी। सुदागर ने बेटे की तरफ देखा, मगर बेटा हंस पड़ा जैसे कोई खेल चल रहा हो। बाप ने ना उसे रोका ना नुकरानी को दिलासा दिया। वो सिर्फ ये बोला, चुप कर जा, मेरे बेटे को इल्जाम देने की जुर्रत करती है। तेरे जैसी सैकड़ों काम करने वालियों को मैं रोज निकालता हूँ। जा अपना काम कर, ज्यादा जुबान ना चला। नुकरानी रोती हुई बाहर निकल गई और आसमान की तरफ हाथ उठाकर बोली, या अल्लाह, अगर तू इंसाफ देने वाला है तो एक दिन इसके घर में वो दिन जरूर लाना कि ये शख्स खुद रोए और सारी दुनिया देखे कि जुल्म का अंजाम क्या होता है। इधर बेटा दिन ब दिन वहशी होता गया। उसके हाथों से किसी की इज्जत, किसी का माल, किसी का सुकून महफूज न रहा। वो नशे में बदमस्त रहता, बाप की दौलत को आग की तरह उड़ाता। उसने बाप के नौकरों को मार मार कर घर से भगा दिया, माँ के कपड़ों में से जेवर चुरा लिए और बाजार में जाकर फहश लोगों के साथ बैठने लगा। लोग अब उस घर को लानत की नजर से देखने लगे। सुदागर का सर शर्मिंदगी से झुकने लगा, मगर फिर भी जिद छोड़ने पर तैयार न था। वो बेटे की हर हरकत को हंसी में उड़ा देता। जब कोई बुजुर्ग या रिश्तेदार समझाने आता तो कहता, छोड़ो जी, जवान खून है, थोड़ा बहुत तो उबाल खाएगा ना, करने दो इसे जो करता है। लेकिन थोड़ा बहुत अब गुनाह के तूफान में बदल गया था। एक रात वो बेटा नशे में धुंध घर आया और अपने बाप के मुंह पर चीख कर बोला, ये सारी दौलत मेरी है, तुमने जिंदगी भर मुझे बगाड़ा, अब तुम ही भुगतो। सुदागर के हाथ कांपने लगे। बेटे ने तैश में आकर दस्तरख्वान पर रखा खाना उलट दिया और बाप को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। माँ चीख पड़ी, अल्लाह के वास्ते बस कर दे, मगर वो उस पर भी चीखा, खामोश रह, तेरे जैसी औरतों ने ही मर्दों को कमजोर बनाया है। माँ का चेहरा जर्द हो गया। वो रो रो कर कहने लगी, जिस बेटे के लिए मैंने 3 बेटियां कुर्बान होते देखी, आज वही मेरा सीना चाक कर रहा है। सुदागर फर्श पर गिरा हुआ सिर्फ एक बात दोहरा रहा था, मैंने क्या मांगा था मगर तूने जालिम दे दिया। मगर देर हो चुकी थी। दुआ की कबूलियत अब बद्दुआ बन चुकी थी, और बद्दुआ जब एक मजलूम माँ के दिल से निकले तो आसमान तक पहुँच जाती है। इधर नूरी अब जवानी की दहलीज पर पांव रख चुकी थी और वो बुजुर्ग से रोज सवाल पे सवाल करती, बाबा मेरी माँ कहाँ है? मैंने बचपन से आज तक इस बंदरिया को माँ के रूप में देखा, लेकिन अपनी असली माँ को आज तक नहीं देखा। बाबा मेरी माँ की कोई तस्वीर आपके पास है तो मुझे दिखाओ। ये बात सुनकर बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और बोले, बेटी ये सब मैं नहीं, तुम्हें वक्त दिखाएगा, अभी मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता।
तुम्हारा दिल दुखेगा। इस बात को यहीं पर खत्म करो, क्योंकि बुजुर्ग आने वाले वक्त के बारे में जानते थे। सुदागर का बेटा उसके साथ वही हाल करेगा जो उसने अपनी बेटी के साथ किया, और तब उसे एहसास होगा कि बेटियां जहमत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत होती हैं। सुदागर पर अब एक और बिजली गिरने वाली थी जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सुदागर के बेटे ने अपनी मर्जी से पसंद की शादी कर ली और सुदागर को इस बात की भनक भी न लगने दी और दुल्हन को लेकर घर आ गया। सुदागर ने बस इतना कहा, बेटा मेरी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी आ गई कि तूने मुझे अपनी खुशियों में शामिल नहीं किया। मैंने तेरा हर नाज नखरा उठाया, और क्या मुझे इतना भी हक नहीं था कि मैं तेरी शादी अपने हाथों से कर सकूं? बेटा गरूर से बोला, शादी मैंने अपनी करनी थी, इसमें तुझसे मशवरा लेने की मुझे क्या जरूरत है? जिंदगी मेरी है, तुम्हारी नहीं, तुमने अपनी गुजार ली। इतना कहकर दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाकर सुदागर की बीवी बोली, तूने बेटे की खातर 3 बेटियों की जान ली और ये तेरा बेटा तुझे नाकों चने चुबा रहा है। अगर आज तेरी बेटियां जिंदा होती तो कभी तुझे इस हालत में ना देख पाती। अरे बेटियां तो बाप के लिए जान कुर्बान कर देती हैं। सुदागर को शर्मिंदगी तो महसूस हुई, लेकिन फौरन सर झटक कर बोला, बकबक बंद कर और सो जा, मुझे भी सोने दे। फिर कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन सुदागर की बहू उसके बेटे से 4 कदम आगे निकली। सुदागर अब काफी बूढ़ा हो चुका था और बीवी अपनी बेटी के गम में रो रो कर आंखों का नूर खो चुकी थी। बूढ़े सुदागर की रातें भी अब खांसते खांसते गुजर जाती थी, लेकिन उसकी बहू को ये चीज बहुत बुरी लगती थी। उसकी बहू माँ बनने वाली थी। वो हर वक्त नाक चढ़ी और बदतमीजी जुबान इस्तेमाल करती रही। एक दिन वो अपने शौहर से बोली, देखो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, तुझे इतनी बड़ी खुशी देने वाली हूँ, लेकिन ये तेरे बीमार माँ बाप मेरे आने वाले बच्चे को बीमारी लगा देंगे। हर वक्त खांसते रहते हैं। थक गई हूँ मैं इनकी हरकतों से। उन्होंने तो बड़े मजे से अपनी जवानी गुजार ली, और जब हमारी बारी आई तो ये हमारा जीना हराम कर रहे हैं। ये इतना खांसते हैं कि मुझे तो रात को नींद भी नहीं आती। तुम ऐसा करो, या मुझे घर में रखो या इन दोनों को रख लो। सुदागर का बेटा बोला, अरे मेरी प्यारी बीवी, जिंदगी मैंने तेरे साथ गुजारनी है, इस बूढ़े माँ बाप के साथ नहीं। अच्छा मुंह सीधा करो और बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम राजी हो जाओ। तो उसकी बीवी फौरन बोली, अगर तुम मेरी खुशी चाहते हो तो ऐसा करो, रात को चुपचाप अपने माँ बाप को रस्सियों में बांधो और घसीटते हुए दरिया में फेंक आओ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और हम जायदाद पर सुकून से ऐश करेंगे। और अगर उनको उनके हाल पर छोड़ेंगे तो ना जाने उनकी कितनी जिंदगी बाकी है और कब मरे कब जान छूटे। इस तरह काम जल्दी आसान हो जाएगा। रात को ये काम होना चाहिए, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी और काम भी हो जाएगा। फिर हम भी सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। गांव के लोग जब पूछेंगे तो हम बता देंगे कि दोनों मियाँ बीवी अपने रिश्तेदारों के पास मिलने के लिए गए हैं। सुदागर के बेटे को एकदम से झटका लगा कि ये बीवी क्या बोल रही है, लेकिन फौरन बीवी का चेहरा देखकर नजरें झुका गया, क्योंकि उसकी बीवी अपना अटल फैसला उसे सुना ही चुकी थी और वो उसके प्यार में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसकी हर बात मानने को तैयार था। अल्लाह ने अभी तक उसकी डोर ढीली छोड़ी हुई थी, क्योंकि मकाफाते अमल भी जरूरी था। शौहर बोला, अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं ऐसा ही करूँगा, बस तुम खुश रहो। इतना बोलकर वो एक हकीम के पास गया और कहने लगा कि मुझे ऐसी दुआ चाहिए जिसको सूंघते ही बंदा ऐसे हो जाए जैसे इस दुनिया में ही नहीं, और जो मर्जी उसके साथ होता रहे उसको कोई खबर तक न हो। हकीम बोला, हाँ मेरे पास ऐसी दुआ मौजूद है, लेकिन इसके लिए मुंह मांगी कीमत देनी पड़ेगी। तो सुदागर का बेटा बोला, पैसों की तुम फिक्र ना करो। फिर उसने जेब से काफी सारे पैसे निकालकर हकीम के हाथ पर रखे और वहां से दुआई ली और घर को आ गया। अब उसे सिर्फ रात का इंतजार था कि कब उसके माँ बाप सोएं और कब वो अपनी हरकत जारी करे। जब रात का वक्त आया
तो बूढ़े माँ बाप अपने कमरे में सो रहे थे। सुदागर के बेटे ने अपनी माँ और बाप के चेहरे पर ऐसी दवाई छिड़की कि वो सोते ही गहरी नींद में चले गए। उन्हें कोई होश न रही। फिर बेटे और बहू ने दोनों माँ बाप को रस्सियों में बांधा और सारी जायदाद के अंगूठे जबरदस्ती कागजों पर लगवाए और फिर उन्हें घसीटते हुए एक दरिया की तरफ ले गया। ये वही दरिया था जिसमें सुदागर ने अपनी मासूम बच्ची को फेंका था। वही रात, वही दरिया, वही हवा जिसने बरसों पहले एक मासूम बच्ची का घड़ा बहाया था। आज फिर लहरें भड़क रही थी। सुदागर का बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को रस्सियों में जकड़कर घसीटता रहा। चांद की रोशनी में उनके सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। माँ के लब कांप रहे थे और बाप नींद बेहोश था। बेटा दांत पीसते हुए बोला, अब तुम दोनों मेरे काम के नहीं। आज वही भेज रहा हूँ जहाँ तुम्हारी जगह है। उसकी आवाज में वही जहर था जो कभी उसके बाप के दिल में बेटियों के लिए था। जैसे ही उसने रस्सी खोली और दोनों को दरिया के दहाने के करीब किया, अचानक झाड़ियों के पीछे से एक चीख गूंजी। बंदरिया, वही माँ जिसने नूरी को पालकर बड़ा किया था, दरख्तों से झपट कर नीचे उतरी। उसने सुदागर को देखा तो जैसे माजी पलट आया हो। उसने दोनों हाथों से सर पीट लिया, चीख मारी, नहीं, इनको मत फेंकना, नहीं, ये वो है, ये वही है जिसने अपनी बेटी को इसी दरिया में फेंका था। ये मत करो, ऐसा मत करो। बंदरिया पागलों की तरह बैन कर रही थी। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे, मगर सुदागर का बेटा उसे देखकर हंसा। चुप हो जा जानवर, तेरे शोर से कुछ नहीं बदलने वाला। और जैसे ही वो बूढ़ी माँ को दरिया की तरफ धकेलने लगा, बंदरिया ने उसके बाजू को पकड़ा, मगर उसने जोर से उसे झटक कर फेंक दिया। वो जमीन पर गिरी, मगर फिर भी चीखती रही, नूरी, नूरी बचा ले बेटी। वही वक्त आ गया जिससे तेरे बाबा डरते थे। वही दरिया फिर से प्यासा है। बंदरिया पूरी कुव्वत से भागती हुई जंगल की तरफ दौड़ी। शाखें उसके जिस्म को जख्मी कर रही थी, मगर वो रुकी नहीं। वो सीधी नूरी और बुजुर्ग की कुटिया तक पहुंची। दरवाजा धड़धड़ाने लगी। बाबा जी, नूरी उठो, दरिया के किनारे एक जालिम अपने बूढ़े माँ बाप को फेंकने जा रहा है। वही जगह है, वही दरिया है, वही जुल्म है, रोक लो उसे। बुजुर्ग फौरन उठे। नूरी के चेहरे पर हैरत और खौफ था। क्या कह रही हो माँ? बंदरिया ने हाँफते हुए कहा, ये वही दरिया है, वही आदमी का बेटा है जिसने तुझे घड़े में बंद किया था। आज वो अपने माँ बाप को उसी पानी के हवाले करने जा रहा है। बुजुर्ग ने आसा उठाया, ऐ रब, तेरे फैसले लौट आए हैं। नूरी ने चादर ओढ़ी और सब दौड़ते हुए दरिया की तरफ रवाना हो गए। आसमान पर बादल छा गए थे। हवा में वही सनसनी थी। दरिया गरज रहा था। जब वो किनारे के करीब पहुंचे तो वो मंजर देखकर नूरी के कदम जैसे जम गए। बेटा माँ को दोनों हाथों से धकेलने ही वाला था कि बुजुर्ग की आवाज गूंजी, रुक जाए जालिम, एक बार फिर दरिया को गवाह मत बना। ये पानी तेरे बाप के गुनाह का बोझ पहले ही उठा चुका है। सब कुछ लम्हे भर में थम गया। बंदरिया चीख चीख कर रो रही थी। यही वो आदमी है बाबा जी जिसने नूरी को इस पानी में फेंका था। आज दरिया के किनारे वो क़यामत का सा मंजर था। लहरें गरज रही थी। हवा में मातम जैसी सिसकी थी। बेटे की आंखों में दहशत और शैतानी गुरूर झलक रहा था, मगर इससे पहले कि वो रस्सियां काट कर उन्हें धकेलता, पीछे से बुजुर्ग की गरजदार आवाज फिजा में गूंजी, रुक जाए लड़के, वरना अंजाम ऐसा होगा कि जमीन भी तेरा नाम भूल जाएगी। वो चौंका, पलटकर सामने देखा, सफेद दाढ़ी वाला अल्लाह का बंदा, उसके साथ नूरी और बंदरिया मौजूद थी। लड़के ने तहकीक से कहा, बूढ़े, मेरे काम में दखल मत दे। ये मेरी जिंदगी है, मेरे माँ बाप हैं, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। बुजुर्ग ने आसा जमीन पर मारा। आवाज ऐसी उठी कि दरिया की लहरें पीछे हट गईं। यही कहा था तेरे बाप ने जब उसने अपनी बेटी को इसी दरिया में फेंका था। आज वही दरिया फिर प्यासा है, और देख उसकी प्यास तेरे बाप के गुनाहों से बुझने वाली है। रुक जा, वरना कल तेरे बच्चे तुझे भी इसी पानी के हवाले कर देंगे, क्योंकि जो जुल्म बोया जाता है
वही नस्लों में उगता है। लड़के के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर गुरूर ने जुबान को बंद न होने दिया। मेरे बाप के गुनाहों का मुझसे क्या ताल्लुक? बुजुर्ग ने कहा, ताल्लुक खून का नहीं, अमल का होता है, और तेरे खून में वही जहर बह रहा है जो तेरे बाप ने खुद अपने हाथों से डाला था। नूरी आगे बढ़ी, आंखों में आंसू, आवाज भर आ गई, बस करो और उनकी रस्सियां खोलो। बंदरिया ने लपक कर रस्सियां काट दी। बुजुर्ग ने दोनों बूढ़ों को सीधा किया, उनके चेहरों पर पानी के छींटे डाले। सुदागर ने लरसती आंखों से देखा तो सामने वही बुजुर्ग, वही बंदरिया और उनके साथ एक जवान लड़की। चेहरे पर नूर, आंखों में वही पहचान जो कभी दरिया के पानी में बह गई थी। माँ ने कमजोर हाथ बढ़ाकर कहा, ये चेहरा मेरी बेटी का है, मेरी नूरी। नूरी की आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़कर माँ के कदमों में गिर गई। अम्मी, मैं वही हूँ जिसे तुमने बचाने की कोशिश की थी, मगर दरवाजे के ताले ने तुम्हें रोका। अल्लाह ने मुझे दरिया में नहीं डूबने दिया, बल्कि इस बंदरिया के हाथों मुझे पलवाया। इस बुजुर्ग ने मुझे ईमान सिखाया। सुदागर का दिल जैसे सीने में फट गया हो। वो हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, नूरी मेरी बेटी, मैं वही जालिम बाप हूँ जिसने तुझे अपने हाथों से इस दरिया के सुपुर्द किया था। मैं अंधा था, मैं पत्थर दिल था। बुजुर्ग ने कहा, अब रो मत, तेरी तौबा कबूल है, लेकिन सुन, ये वही दरिया है जो गवाह है हर जुल्म का। आज तेरे बेटे का दिल इसी दरिया के किनारे इम्तिहान में है। इतने में वो बेटा जो सब कुछ देख रहा था थरथराता हुआ बोला, ये सब सच नहीं हो सकता, ये मेरी बहन नहीं, ये सब फरेब है। बुजुर्ग ने आस्था से जेब से वही टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा निकाला जिस पर माँ के हाथों से लिखा वही निशान अभी भी मिट्टी पर जमा हुआ था। देख, ये तेरा वही घड़ा है जिसमें तेरा बाप अपनी बेटी को बंद करके फेंकने आया था, मगर अल्लाह ने उसे फना नहीं होने दिया। बेटे के हाथ कांपने लगे। घड़ा जमीन पर गिरा और उसमें से एक खुश्क बेरी का पत्ता बाहर निकला, वही दरख्त का पत्ता जिसकी टहनी से नूरी का घड़ा अटका था। बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह अपने फैसले देर से सुनाता है, मगर सुनाता जरूर है। बंदरिया ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ रब, तेरा इंसाफ देखकर दिल कांप उठता है। सुदागर के बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। वो नूरी के कदमों में गिर गया। बहन, मैंने गुनाह किया, मैंने माँ बाप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी बदी से बचा ले। नूरी ने उसके सर पर हाथ रखा। मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि तुम मेरी किस्मत का हिस्सा हो, लेकिन याद रखना, अगर कभी किसी ने किसी बेटी को कमजोर समझा तो ये दरिया फिर बोल उठेगा। सुदागर जमीन पर गिरकर सजदे में रो रहा था। ऐ रब, मैंने बेटी को जहमत समझा और आज उसी के हाथों जिंदगी पाई। मैं तेरी हिकमत के आगे झुक गया, मुझे माफ कर दे। बुजुर्ग ने सबके सर पर हाथ रखा। यही है मुकाफात, यही है अदले इलाही। बेटी रहमत होती है। जिसे तुमने बोझ कहा था, आज वही तेरे गुनाहों का बोझ उतार गई। दरिया की लहरें थम गईं, आसमान पर चांद साफ हो गया और बंदरिया खामोशी से किनारे पर बैठ गई, जैसे कह रही हो, ये दुनिया बदल सकती है, मगर माँ का दिल कभी नहीं बदलता। रात खत्म हो चुकी थी, मगर फिजा में अब भी वो खामोशी थी जो किसी बड़े फैसले के बाद छा जाती है। नूरी अपने वालिदैन को सहारा देकर कुटिया तक ले आई। बंदरिया उनके कदमों के पास बैठी थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की निगरानी कर रही हो। बुजुर्ग ने सबको पानी पिलाया और आसमान की तरफ देखकर बोले, अल्लाह के फैसले मुकम्मल हो गए, मगर अभी एक शैतान बाकी है जिसने इन सब को गुमराह किया था। नूरी ने पूछा, बाबा, वो जादूगर? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, वही जो तेरे बाप को बहकाता रहा। वो अब भी गांव के कच्चे मकान में लोगों को धोखा देकर उनका ईमान चोरी कर रहा है। आज उसका अंजाम भी लिखा जा चुका है। अगली सुबह सूरज तुलू हुआ तो नूरी, बुजुर्ग और बंदरिया उसी जादूगर के डेरे की तरफ निकले। वही बुसीदा कोठड़ी, वही तावीजों की बदबू और अंदर वो शख्स जो कभी खुद को बाबा कहलाता था, अब कपकपाते हाथों से कुछ लिख रहा था। नूरी के कदमों की आहट से उसने सर उठाया, जैसे किसी पुरानी रूह को पहचान गया हो। तू जिंदा है?
नूरी आगे बढ़ी। हाँ, मैं जिंदा हूँ और आज वो ईमान लेने आई हूँ जो तूने कई घरों से चुरा लिया। जादूगर ने हंसकर कहा, मैं तो बस लोगों की ख्वाहिश पूरी करता हूँ। बुजुर्ग ने असा जमीन पर मारा। नहीं, तू ख्वाहिश के नाम पर ईमान बेचता है, तू शैतान का सुदागर है। इतना कहना था कि डेरे के कोने से धुआं उठने लगा। जादूगर ने चीख मारी, ये आग कहाँ से आई? नूरी ने कहा, ये आग नहीं, तेरे झूठों की कमाई है जो अब जलने लगी है। वो तावीजों के दरमियान घबरा कर दौड़ा, मगर हर कागज खुद ब खुद शोलों में बदलता गया। बंदरिया ने चीख मारी, बस कर दे, अब तुझे माफी नहीं मिलेगी। चंद लम्हों में वो झोंपड़ी आग के शोलों में लिपट गई और जादूगर की चीखें आसमान तक गईं। बुजुर्ग ने आंखें बंद करके कहा, अदल मुकम्मल हुआ। वो तीनों वापस मुड़े तो रास्ते में गांव के लोग खड़े थे। उनमें वही बहू भी थी जो अपने जुल्म पर खुश थी, मगर अब उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। उसके शौहर ने आगे बढ़कर कहा, यही है वो औरत जिसने मेरे दिल को जहर दिया, जिसने मुझे मेरे माँ बाप के खिलाफ किया। अब फैसला आप करें। नूरी ने उस औरत की तरफ देखा, आंखों में पानी और जुबान पर आग। अल्लाह का फैसला सबसे बड़ा है, मगर सुन, जिस औरत ने शौहर को वालिदैन के खिलाफ किया, उसके नसीब से बरकत और चैन हमेशा के लिए उठा लिया जाता है। औरत रोने लगी, मगर उसके आंसू अब किसी काम के नहीं थे। बुजुर्ग ने सबको मस्जिद के सहन में जमा किया और कहा, लोगों, ये वो घर है जिसने बेटी को जहमत समझा, मगर आज अल्लाह ने उसी बेटी को रहमत बनाकर वापस भेजा, ताकि तुम जान लो कि जो अपनी औलाद के साथ नाइंसाफी करता है वो दरअसल अपने नसीब से लड़ता है। सुदागर ने रोते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खता बेटी को कमजोर समझकर की, लेकिन आज उसी बेटी ने मुझे रब से मिला दिया। मैं अपनी बाकी जिंदगी नेकियों में गुजारूंगा। नूरी ने आगे बढ़कर अपने बाप के हाथ चूमे। अल्लाह की जमीन पर कभी कोई बेटी जहमत नहीं, बस इंसान अंधा होता है। सबकी आंखों से आंसू बह निकले। बंदरिया ने नूरी के गाल से अपना चेहरा रगड़ा, जैसे कह रही हो, बेटी मेरा फर्ज अभी भी पूरा नहीं हुआ। बंदरिया आगे बढ़ी, जैसे नूरी से कुछ कहना चाहती हो। नूरी ने हैरानी से पूछा, माँ क्या बात है? बंदरिया ने आहिस्ता से सर उठाया, आंखों में आंसू चमकने लगे। बेटी, मेरा एक फर्ज अभी भी बाकी है। नूरी हैरान हो गई, कौन सा फर्ज माँ? तुमने तो सब फर्ज निभाए, मुझे पाला, बचाया, माँ बनकर जिंदगी दी। बंदरिया ने रोते हुए कहा, माँ की गोद देने वाला रब है, मगर नसीब लिखने वाला भी वही है, और तेरा नसीब अभी अधूरा है। बुजुर्ग कुटिया से बाहर आए, उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। बोले, आज फजर के बाद तेरा मुकद्दर मुकम्मल होगा बेटी। नूरी ने हैरत से पूछा, बाबा कैसे? बुजुर्ग ने दरिया की तरफ इशारा किया, चल, वहाँ वो है जिसे रब ने तेरे लिए चुना है, जो बरसों से तुझे दूर से देखता है मगर जुबान से कुछ नहीं कहता। वो तीनों, नूरी, बंदरिया और बुजुर्ग, चांदनी रात में दरिया के किनारे चलने लगे। दरिया की लहरों में चांद का अक्स टूटकर झलमिलाने लगा। हवा में खुशबू थी। दूर एक शख्स नमाज पढ़कर दुआ मांग रहा था। पुराना सा लिबास, मगर चेहरे पर रोशनी थी। दुआ खत्म करके जब उसने हाथ चेहरे पर फेरा तो उसकी निगाह नूरी पर जा ठहरी। नूरी का दिल धड़कने लगा। वो पहली बार किसी की आंखों में इतनी पाकीज़गी देख रही थी। बंदरिया आगे बढ़ी, बेटी, यही है वो शख्स जो बरसों से तुझे दूर से देखता आया है। जब तू इल्म बांटती थी, ये रोज दरख्त के पीछे बैठकर तेरी आवाज सुनता था। ये तेरी इबादत, तेरे सब्र और तेरे ईमान पर फिदा है, लेकिन कभी तुझसे बात ना की, क्योंकि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो जुबान नहीं, दिल बोलता है। नूरी के आंसू चमकने लगे। माँ, ये कौन है? बंदरिया ने कहा, ये वो नेक लड़का है जिसकी माँ पर जुल्म हुआ था, जिसे तेरे बाप के बेटे ने रुलाया, लेकिन उसकी नफरत नहीं, दुआ में बदला, और उसी दुआ ने आज तुम्हें और उसे एक कर दिया। यही तेरा जीवन साथी है जो तुझे दुनियावी नहीं, रूहानी मोहब्बत देगा।
नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, मैंने तुम्हें कभी छू कर नहीं देखा, मैंने तुम्हें सिर्फ खुदा के नूर में देखा। अगर रब की रजा हो तो मैं अपनी जिंदगी तेरे कदमों में रख दूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर असा जमीन पर टेका। ये वो मोहब्बत है जो दरिया की गहराइयों जैसी है, खामोश मगर अबदी। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए। ऐ रब, जिसने जुल्म को रहमत में बदला, आज उन दो दिलों को भी अपनी रजा में जोड़ दे। दुआ खत्म हुई तो हवा में खुशबू फैल गई। दरिया की लहरें जैसे सरगोशी कर रही थीं। ये वही बच्ची है जो मिट्टी के घड़े में थी और आज वो रोशनी बनकर चमक रही है। नूरी ने आसमान की तरफ देखा। ऐ रब, तूने मुझे सिर्फ जिंदगी नहीं, मोहब्बत भी अता की। अब मैं समझ गई हूँ कि रहमत कभी अकेली नहीं आती, उसके साथ मोहब्बत भी होती है। दरिया के किनारे जब सब कुछ खत्म हुआ, ताजर और उसकी बीवी दोनों बुजुर्ग के कदमों में गिर गए। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। ताजर की जुबान कांप रही थी। वो बोला, बाबा जी, मैंने बेटियों को जहमत समझा, मगर आज समझ आया कि यही तो रहमत है, यही घर की बरकत है। बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, तौबा कबूल हो जाती है जब दिल बदल जाए। अब अपनी इस बेटी को इज्जत से रुखसत करो ताकि तेरे गुनाह के बदले नेकी लिखी जाए। ताजर की आंखों में नूर आ गया। वो नूरी के करीब आया और बोला, बेटी, मैंने तुझे खोकर दुनिया की हर खुशी खोई। अब तुझे पाकर मैं अपनी आखिरी खुशी मुकम्मल करना चाहता हूँ। तेरी शादी ऐसी होगी कि सारे गांव वाले कहेंगे, बेटियां जहमत नहीं, अल्लाह की रहमत होती हैं। चंद दिनों के बाद गांव में ईद जैसी रौनक थी। हर दरवाजे पर चिराग जल रहे थे, बच्चे फूल उछाल रहे थे, औरतें दरियां बिछा रही थी और फिजा में तिलावत की आवाज गूंज रही थी। नूरी दुल्हन बनी बैठी थी, चेहरे पर सुकून, आंखों में हया और दिल में शुक्र। बंदरिया दरख्त की एक शाख पर बैठी थी, जैसे कोई फरिश्ता अपनी बेटी की खुशी देखने आया हो। बुजुर्ग ने निकाह पढ़ाया। दुआओं के साए में नूरी और उसका नेक शौहर एक दूसरे के हाथों में हाथ दिए खड़े थे। ताजर की बीवी के चेहरे पर वही सुकून था जो बरसों से गायब था। निकाह के बाद बुजुर्ग ने हाथ उठाए और बोले, ऐ अल्लाह, जिसने दरिया में रोने वाली बच्ची को रहमत बना दिया, अब उसके नसीब में बरकत लिख दे। निकाह के बाद नूरी ने अपने शौहर से कहा, हमें अपनी जिंदगी दूसरों की आसानी के लिए गुजारनी है, क्योंकि जो दुख में जिए वही सुकून बांटना जानता है। तब बुजुर्ग ने ताजर से कहा, अब इस जमीन पर एक ऐसा मदरसा बना जहां वो बच्चियां पढ़ें जिन्हें लोग अब तक बोझ समझते हैं। ताजर की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने फौरन वादा किया, मैं वो मदरसा बनाऊंगा जिसमें नूरी और उसका शौहर इल्म की रोशनी फैलाएंगे। चंद महीने के बाद उसी गांव के बीच एक खूबसूरत मदरसा बना। सफेद दीवारें, नीला गुंबद, दरवाजे पर लिखा था मदरसा अल नूर, जहां नूरी बच्चियों को कुरान, अदब और इंसानियत सिखाती थी और उसका शौहर उन्हें ईमान, इल्म और मोहब्बत का दर्स देता था। बुजुर्ग कभी कभार आकर देखते और मुस्कुरा कर कहते, देखा अल्लाह ने जुल्म से कैसे रोशनी निकाली। अब ये वो गांव है जहां बेटियां ना छुपाई जाती हैं, ना दबाई जाती हैं, बल्कि फख्र से सिखाई जाती हैं। बंदरिया रोज शाम को दरख्त से देखती, नूरी के चेहरे पर इत्मीनान, बच्चियों के कहके और कुरान की तिलावत की आवाज। फिर आसमान की तरफ देखकर कहती, ऐ रब, तेरा वादा सच्चा है। तूने जिसको मिट्टी के घड़े में डाला था, आज उसे नूर बनाकर सबके दिलों में जगा दिया। एक दिन सूरज की पहली किरण जब मस्जिद के गुंबद पर पड़ी तो मदरसे के दरवाजे पर एक बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में नदामत, हाथ में एक छोटी सी तस्बीह। नूरी ने दरवाजा खोला तो चौंक गई। वो उसका बाप सुदागर था। उसने लरजती हुई आवाज में कहा, बेटी, मैं दुनिया का हर इल्म जानता था, लेकिन तेरी कुर्बानी के बाद समझा हूँ कि असल इल्म कुरान है। मैं वो सीखना चाहता हूँ जो तू सिखाती है, क्योंकि अब मुझे जीना नहीं, बस लौटना है। नूरी की आंखों से आंसू बह गए। फिर नूरी ने कुरान खोला और अपने बाबा के सामने बैठ गई और कहने लगी, बाबा, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हर रोज वो बच्चों की तरह
अपनी बेटी से कुरान का सबक लेता और सुनाता। ऐसे करते करते उसने 3 महीनों में कुरान को खत्म कर लिया। फिर तर्जमा सीखा, तफसील सीखी, और जो बेटियों को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत बख्शी, जब वो पढ़ता तो गिड़गिड़ा कर रोने लगता, आंसू बहने लगते, अपने रब से माफिया मांगता और गशी के आलम में चला जाता। जब उसकी तालीम मुकम्मल हो गई तो वो बीमार पड़ गया। उसके बहुत इलाज करवाए गए लेकिन आराम ना आया। सुदागर ने अपनी बेटी का हाथ थामा और बोला, बेटी, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, मैं अपने रब से मुलाकात चाहता हूँ। ये दुनिया अब मुझे अच्छी नहीं लगती, अब तुम सब मुझे इजाजत दो। फिर सुदागर के लबों पर कलमा जारी हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो गईं। बेटी बिलक बिलक कर रोने लगी। पूरा गांव जमा हो गया। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने नूरी के सर पर हाथ रखा और उसे दिलासा दिया। बंदरिया भी पास बैठी ज़ारों की तरह रो रही थी। ताजर के कफन दफन का इंतजाम हुआ, जनाजा पढ़ाया गया, और जब गोरकन ने कब्र खोदी तो वहां पर खड़े आदमियों ने देखा कि उसकी कब्र ऐसे महक रही थी जैसे गुलाबों के फूल महकते हैं। और फिर ताजर को इज्जत से दफना दिया गया। प्यारे दोस्तों, जितने भी गुनाह कर लिए जाएं, लेकिन अल्लाह ताला इंसान को हर वक्त पुकारता है कि ऐ मेरे बंदे, अब भी लौटा, वक्त है तौबा कर ले। उस सुदागर ने पूरी जिंदगी गुनाह किए और जब वक्त निज़ा आया तो उसके दिल में कुरान उतर चुका था और उसकी तौबा अल्लाह के हुजूर कबूल हो चुकी थी। गांव के लोगों ने सुदागर को दफनाकर 70 कदम हटकर दुआ मांगी और अपने घरों को लौट गए। आज भी हमारे माशरे में ऐसे बेशुमार मर्द और औरतें हैं जो औलाद ना होने पर मायूसी के अंधेरों में भटकते हैं। वो रब्बे कायनात से दुआ मांगने की बजाय दरबारों, पीरों, फकीरों और जाली बाबाओं के कदमों में जा गिरते हैं। कोई दरबारों पर सजदे कर रहा है, कोई कब्रों से उम्मीदें बांध रहा है, कोई तावीज गले में डालकर यकीन कर बैठा है कि अब किस्मत बदल जाएगी। लेकिन याद रखो, तकदीर बदलने वाला कोई बाबा नहीं, कोई आमल नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। औलाद देना या ना देना उसी के हाथ में है, जो चाहे दे दे और जिससे चाहे रोक ले, क्योंकि वही सब जानता है किसके लिए क्या बेहतर है। अफसोस इस बात का है, इंसान इल्म के दौर में भी जाहलियत की अंधी नगरी में भटक रहा है। कभी बेटी की पैदाइश पर मातम करता है, कभी बेटे के इंतजार में जुल्म की हदें पार करता है। अरे नादान इंसान, बेटी को बोझ मत समझ। ये वही बेटी है जो तेरे बढ़ापे का सहारा बन सकती है, तेरे मरने के बाद तेरे लिए दुआ करने वाली है और तेरे हक में सदका जारिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 बेटियों की परवरिश की, उनके साथ भलाई की, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी। सोचो तो सही, जिस बेटी को तुम बोझ समझते हो वो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा बन सकती है। अफसोस, आज हम बेटों के लिए जायदादों के कागज संभाल लेते हैं मगर बहनों के हक हिस्से छीन लेते हैं। हम समझते हैं इससे माल कम होगा, मगर याद रखो, बहन के हिस्से की जमीन अगर तुम खाओगे तो क्यामत के दिन वही जमीन तुम्हें जकड़ लेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को इज्जत दी, उनके हक में दुआ दी, मगर हम आज भी उन्हें तरस की निगाह से देखते हैं। अब वक्त है हम अपने दिल के आईने साफ करें और अपनी सोच बदलें। पीर पर नहीं, परवरदिगार पर यकीन रखो। तावीज पर नहीं, दुआ पर भरोसा करो और बेटी पर अफसोस मत करो, इस पर फख्र करो, क्योंकि जिस घर में बेटियों के कहके गूंजते हैं वहाँ रहमतें बरसती हैं, फरिश्ता साया करता है और वो घर जमीन पर जन्नत बन जाता है। अगर आज तुमने अपनी बेटी को मुस्कुराकर देखा, उसे इज्जत दी, उसे तालीम दी, उसका हक अदा किया, तो समझ लो कि तुमने अपनी दुनिया ही नहीं आखिरत भी संवार ली। याद रखो, अल्लाह के नजदीक इज्जत बेटे या बेटी की नहीं, नीयत और अमल की होती है। और वो दिल जो अपनी औलाद में फर्क नहीं करता,
وہی دل اللہ کے عرش کے نیچے سایہ پاتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کا واقعہ آپ سب کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی دل کو چھو جانے والے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو وہ واقعات سننے کو ملیں گے جن سے ہم سب کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ پاک تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین یا رب العالمین۔